Student, let's start with Ohm's law. Right, it states that Ohm's law states that current flowing between 2 points in a conductor is directly proportional to the potential difference between 2 points. Right, that is I is proportional to V, provided temperature is constant. Right, provided temperature is constant. Provided temperature is constant. Right, so that means V by I is equal to constant. Correct. And that is equal to R. So you can write V is equal to IR. This is the mathematical form of Ohm's law. R is called resistance of the conductor, right? R is called resistance of the conductor. R is called resistance of the conductor, right? Yes or no? And student, Ohm's law is not universal. You can say Ohm's law is not universal. That means all conductors don't obey Ohm's law. All conductors don't obey Ohm's law. Conductor obeying Ohm's law are called ohmic conductor. Yes or no? Right? Conductors obeying Ohm's law. Conductors obeying Ohm's law are called ohmic conductor. Are called ohmic conductor. Right? Yes or no? Always resistance is always defined by ratio of V by I. Right? And graph between V and I. अगर हम V and I की graph बनाए, ठीक है? Let I'm taking this one as I and this one is V. Correct? ठीक है? So the straight line. The graph between V and I for a metallic conductor is straight line, right? And you know a different temperature, Vi curves are different. Means this is slope of, यहाँ पर आप लिख सकते हो, slope of the line that is equal to tan theta, that is equal to V by I, that is equal to R. बट अलग अलग टेम्परेचर के लिए ओम्स लॉ का ग्राफ अलग अलग रहता है. इसका मतलब ये V है, करेक्ट, एंड दिस इज I, है ना, ये है और यहाँ से ये है, ठीक है. और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, इसने स्लोप बनाया θ1, इसने स्लोप एंगल बनाया θ2. सो जब थीटा बड़ा होता है तो स्लोपिंग बड़ा होता है, मतलब tan θ1 स्लोप इज ग्रेटर देन tan θ2. सो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, पहला का रेजिस्टेंस बड़ा है देन दैट ऑफ सेकंड, एंड टेम्परेचर आल्सो T1, जस्ट अ मिनट, T1 is also greater than T2. Just keep in mind, कहीं पे अगर NTSC लेवल पे क्लास 10 की स्टैंडर्ड पे आपको MCQ क्वेश्चंस के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है. Understood? And there are many devices those don't obey Ohm's law, like example crystal rectifiers, thermionic valves, transistors. इसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस पे पढ़ोगे. उनको कहते हैं नॉन ओमिक या फिर नॉन लीनियर कंडक्टर्स, राइट. तो वहां पर जो VI कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो लीनियर नहीं होता है, वो नॉन लीनियर होता है, ठीक है. तो अभी थोड़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट. गिव हेडिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. गिव हेडिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे मतलब फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड सेपरेटेड बाय लेंथ. फिजिकली अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, जस्ट टू के कंडक्टर, और जिसका लेंथ जो है वो L है, करेक्ट. और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ेंगे आप अपने हायर क्लासेस पे. इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी टर्मिनल अगर हम देखेंगे तो ये प्लस है एंड दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस टू प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, है ना.
This is length of the conductor and this is area of cross section. अगर हम for a conductor of uniform cross sectional area, resistance between two ends is given by its length. That is ये end को हम A भी मान लेते हैं. So that resistance is proportional to, you know, मतलब not proportional to, directly हम लिख सकते हैं is equal to rho L by A. Just for revision, you have already learned all those things. This rho is called resistivity of the conductor. This is called resistivity of the conductor. Right? This is called resistivity of the conductor. ठीक है? And this L is called length of the conductor. L is called length of the conductor. ठीक है? And A is cross sectional area. Area of cross section. So एक बार आपको थोड़ा सिंबल्स के साथ acquainted करवा देते हैं. अगर यूनिट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस R ओम है and this is ohm, right? And this is specific resistance, उसको रो बोलते हैं, right? उसका यूनिट होता है ओम मीटर, करेक्ट? दैट इज ओम मीटर. ऑल्सो इसका नाम सीमेंस भी होता है, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस इक्वेशन, above equations of resistance can be applied only to a homogeneous isotropic conductor of uniform cross section, right? With the potential difference applied, जैसे कि हमने दिखाया है, ठीक है? और डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स, इसके ऊपर से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, राइट? डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, depends on various factors, right? So there is R is equal to rho L by A, है ना? So therefore R depends directly on length, inversely proportional to area, ठीक है? And resistance is directly proportional to resistivity थी, कभी कभी आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा. It is directly proportional to resistivity, you can check it, ठीक है? और स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब मान के चलो लेट्स टेक एग्जांपल. कभी अगर इस तरह की क्वेश्चंस आपको कहीं पे मिले तो जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर हमने एक लेट्स मेक ए क्यूब हियर, ठीक है? जस्ट सी, यहाँ पर हमने बनाए, दिस इज द थिंग, ठीक है? सो ये एक टर्मिनल ले लेते हैं, ये एक टर्मिनल, मतलब ये वायर में कनेक्ट किया हूँ, है ना? यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ, यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? मेटालिक ट्यूब, राइट? ठीक है ना? दिस इज ए, दिस इज बी, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है, दिस लेंथ इज गिवन एज ए, this length is given as B, and this side is given as C, correct? Just see here, this is a metallic cuboid, this is a metallic cuboid, right? है ना? This is a metallic cuboid. तो यहाँ पर आपको मतलब रेजिस्टिविटी जो है इसका रो है, इट्स रेजिस्टिविटी इज रो, एंड एज लेंथ मतलब जो भी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ए बी सी की टर्म्स पे दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैंने आपको पूछा कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन द एंड्स ए एंड बी, अब देखो हम इस दोनों एंड के बीच में हमें निकालना है, जस्ट ए दिस एंड, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, राइट? व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू? सो व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर, आर इज इक्वल रो एल बाय ए ना, है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? सो दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो लिख दिए. अभी दोनों के बीच में गैप क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ इज ए. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्फ? बी इनटू सी, करेक्ट? सो दैट इज ए बाय बी सी, है ना? है कि नहीं? अंडरस्टूड ना? अगर हम आर पी क्यू की बात करें तो क्या करेंगे? जस्ट कीप इन माइंड, पी क्यू मतलब पहले लेंथ ले लेंगे, इसका लेंथ क्या है? सी है, तो एल की जगह पे सी लिखेंगे, बाकी एरिया क्या है? ए क्रॉस ए इनटू बी, सो दैट इज इक्वल टू रो इनटू सी डिवाइडेड बाय ए इनटू बी. ये चीज समझ पाया सबको? अंशिका गॉट इट? प्रत्युषा, पार्थ? यस सर. ठीक है फिर.
ये doesn't depend on the dimension of the conductor but depends on the nature, right? Nature and temperature. Dimension के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? And resistance is a property of an object and resistivity is the property of the material, right? है ना? तो इसको थोड़ा दिमाग पे रखना और इसके रिगार्डिंग और एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, छोटे से लेक्चर रखेंगे फिर बाद में देखेंगे। अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है ओम्स लॉ के क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे अगर कोई भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब ऑन स्ट्रेचिंग द वायर या फिर ऑन कॉटिंग द वायर, कॉटिंग एंड अगेन जॉइनिंग द वायर, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है इन ओवरव्यू थोड़ा उसको हम बता देते हैं कि कैसे उसको परसेंटेज कब निकालना दिया रहेगा, कब रेडियस दिया रहेगा, कब डायमीटर ऑफ द कंडक्टर दिया जाएगा, राइट? ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स करके लिखो थोड़ा इसको। On stretching a wire both length and area changes, मतलब यहाँ पर एक वायर था, नो, यहाँ पर एक लेंथ, इसका लेंथ L था, what was its length? L, what was its area? A, correct? So volume constant था, क्या था? Volume was constant. So volume constant मतलब area into length, it was constant, correct है ना? ठीक है, मान के चलो इसका रेजिस्टेंस R1 था और लेंथ हमने L1 लिए थे, राइट? रेजिस्टेंस इज R1, लेंथ इज L1 और एरिया A1 है, कभी कभी रेडियस की टर्म्स में वो R1 भी दे सकता है। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? तो जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे क्या करेंगे? जब स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ L1 था, L2 में बदल गया। वो बढ़ सकता है, घट भी सकता है, मतलब स्ट्रेच कर लो मतलब बढ़ रहा है। और एरिया जो है वो किस पे बदल जाएगा? एरिया जो है वो A2 पे बदल गया, मतलब रेडियस जो R1 था वो R2 पे बदल गया, राइट? है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो R1 था, मान के चलो दूसरा का जो नया रेजिस्टेंस आया मेरा R2 हो गया, तो R2 को कैसे रिलेट करेंगे, राइट? देखो यहां पर मैं एक चीज बताता हूँ, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, बट मुझे क्या करना है, पूरा वायर का क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसको अगर मैं एक L A मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर एक L मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट विल बी L स्क्वायर बाय V। सो मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, है ना? R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R L स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम R1 बाय R2 की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है, गेटिंग नाउ? No, sir, not understood. देखो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैंने बोला कि उसका लेंथ को मैंने डबल कर दिया, मैंने और कुछ नहीं बोला। डबल कर दिया मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला कि उसके एरिया को आधा घटा दिया ना। Yes, sir. तो वही वॉल्यूम की टर्म्स पे अगर देखेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, ऊपर में एक L मल्टीप्लाई कर तो V तो कांस्टेंट है। तो लेंथ को अगर डबल करता हूँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ को अगर ट्रिपल करता हूँ तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ना? Yes, sir. ठीक है, फिर तो अभी एरिया के साथ भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स सी अबाउट एरिया। आपने तो ऐसा दिखा कि R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो अभी आपको वॉल्यूम बनाना है इसको, तो ऊपर A मल्टीप्लाई कर दो, नीचे A मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? वॉल्यूम बाय एरिया का स्क्वायर हो गया ना, है कि नहीं? So that means radius is related as 1 by a square, मतलब not related as, मतलब उसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ऐसा मतलब लॉजिक सही नहीं रहेगा। So R1 by R2 जो है that is equal to 1 by A1 square by 1 by A2 square, है ना? तो ये क्या हो जाता है? A2 square by A1 square, all understood? And area is equal to pi r square ना स्टूडेंट्स? अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, एरिया इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर का एरिया इज पाई R2 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया? R टू द पावर 4 हो गया ना, R टू द पावर 4 बाय R1 टू द पावर 4। गेटिंग और नॉट? सो रेजिस्टेंस R1 बाय R2, एरिया दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। सो दैट इज R टू द पावर 4 बाय R1 टू द पावर 4। ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? अंडरस्टूड और नॉट? पार्थ?
पार्थ अंडरस्टूड? Sir, 5 will take square. दिस इज एरिया ना, एंड दिस एरिया ऑफ द सर्किल इज हाउ मच? इसका रेडियस r1 है, एरिया a1 है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर ना। और हमने एरिया का स्क्वायर क्यों लिया वो मैंने इस स्टेप में बताया आपको। r प्रोपोर्शनल टू l बाई ए, बट मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, मुझे एरिया के साथ रिलेट करवाना है कि मैंने एक वायर को जितना था मैंने उसकी मोटाई को आधा कर दिया, इस तरह लिखा गया। मोटाई को आधा कर दिया मतलब क्या, एरिया को मैंने आधा कर दिया, राइट? तो वहां पर कैसे रेजिस्टेंस को लिंक करेंगे? अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? R is directly proportional to 1 by a square. यस, मतलब रेशियो निकाल सकते हैं, r1 by r2 इज इक्वल टू 1 by r इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पर निकाला ना हमने, करेक्ट। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। नाउ इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अभी कहीं कहीं पे क्या होना है कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बोलता है वो, तो वहां पर देखना है कि ये लेस देन 5% है या थोड़ा ज्यादा है। देखो थोड़ा यहाँ पर इस तरह की क्वेश्चन पे बच्चे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। सो राइट, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज, गिव हेडिंग इफेक्ट ऑफ परसेंटेज, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ of wire in case of stretching of wire, in case of stretching of a wire। तो वो पूछता है कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो क्या करेंगे इसको देखो, तो R2 बाय R1 अगर हमें निकालना है, राइट, इनिशियल लेंथ जो था, ठीक है, L स्क्वायर था, बट इस पे क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, मतलब L स्क्वायर प्लस 1 प्लस x परसेंटेज चेंज है, तो x बाय 100 का स्क्वायर, राइट। तो L जो है, L क्या है, L इज द ओरिजिनल लेंथ, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ओरिजिनल लेंथ है L, एंड x परसेंटेज मतलब क्या है, इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट, राइट, परसेंटेज इंक्रीमेंट है ना। if x is very small, if x is small, मतलब small मतलब से less than 5%, right, then percentage change in r, then percentage change in r, that is कितना हो जाएगा, r2 minus r1 by r1 into 100 is equal to 1 plus x by 100 का स्क्वायर, राइट, चेंज इन निकाल रहे हैं, -1 by 1, क्योंकि l कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देखना 2x परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैंने कहीं पे आपको बताया कि लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, डबल नहीं मतलब 2% बढ़ा दिया मैंने, तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो आप बेशक बोल सकते हो कि ये 4% बढ़ जाएगा, राइट, अंडरस्टूड। अभी बाकी जो असाइनमेंट की लिंक यहाँ पर दिया जाएगा, आप थोड़ा इसको कर लेना, ठीक है, सो दैट आप अगर कर लोगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर के ऊपर, ठीक है।